Okay, now listen, starting the class for today, we have a new poem here, that is Lucy Gray. Okay, on page number 18. Page number 18, you can find a poem Lucy Gray by William Wordsworth. So first of all, I will give you something about the introduction of the poet William Wordsworth. Okay. So William Wordsworth is a very famous poet of English language. There are two William in English language and they both are very much famous in their own era. First is William Shakespeare, who was the greatest poet of Elizabethan era, and the second is William Wordsworth, who is the greatest poet of Romantic era. So he is a Romantic poet. You are, for the third time you are reading the William Wordsworth, this poet. Because before that you have, the second time you are reading it. Before that you read it in class 9th. There was a poem, The Daffodils. Okay, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle in the Milky Way, they stretched in a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what well that show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mode, there flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So this was the poem in class 9th. That is called The Daffodils. And now in the first year you are going to read another poem, that is Lucy Gray. So William Wordsworth, first of all, he is a Romantic poet. He belongs to Romantic era. So Romantic era is what era? 1700 to 1800. This era in English poetry is called Romantic era. I already told you in the eras of poetry in that lecture. Romantic era or Romantic period or Romantic age, or the other thing. And what are the special characteristic of Romantic poets? They just discuss about two things: beauty and love. They just tell you about the two phenomena, beauty and love. And what they show about beauty and love? They show about the permanent nature of beauty and love. Like beauty and love, they both are permanent things. They can never be decreased. They can never be temporary. Like John Keats once said, a thing of beauty is a joy forever. Okay, so that's a Romantic poet. जो ये बताते हैं कि खूबसूरती और मोहब्बत ये दायमी जज्बात हैं, इनमें कमी नहीं आती, वक्त के साथ साथ बाय द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर इंक्रीमेंट आती है, बढ़ते रहते हैं. ठीक है, पहली बात तो रोमांटिक पोएट आप समझ गए. जैसे डैफोडिल्स जब आपने क्लास 9th में इनकी पढ़ी थी तो उसके अंदर भी क्या था कि एक खूबसूरत फूलों के बारे में बता रहे थे, ये खूबसूरती के बारे में फूलों की बता रहे थे. नेक्स्ट इसके ये पोएट लॉरेट हैं. पोएट लॉरेट क्या होता है? लक़ब होता है. किसी दौर का जो सबसे बड़ा शायर जो होता है ना, हर दौर का, वो पोएट लॉरेट कहलाता है. जैसे एलिजाबेथन एरा के पोएट लॉरेट थे विलियम शेक्सपियर. रोमांटिक एरा के जो पोएट लॉरेट थे विलियम वर्ड्सवर्थ. इस आगे हम पढ़ेंगे दैट इज़ विक्टोरियन एरा. विक्टोरियन एरा के जो पोएट लॉरेट थे वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये उनका नाम है. तो वो भी शायर है. वो सिर्फ टेनिसन कहते हैं, बेन टेनिसन नहीं, ठीक है, वो तो कार्टून हो गया. लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ये एक शायर है. ठीक है, तो पोएट लॉरेट का लक़ब इनके पास था, विलियम वर्ड्सवर्थ के पास था. साथ में ये पोएट ऑफ नेचर भी कहलाते हैं. पोएट ऑफ नेचर मतलब कुदरत के शायर, फितरत के शायर. बिकॉज अपनी शायरी के अंदर कुदरती चीज़ों के बारे में, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत बातें लिखा करते थे. जैसे फूलों के बारे में, दरख्तों के बारे में, झीलों के बारे में चीज़ें लिखा करते थे. दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर. ठीक है, उसके बाद ये कि पैदा कहाँ हुआ था? अच्छा, पोएट ऑफ नेचर किस लिए थे? देखो, शायर कभी बनता नहीं है, शायर पैदा होता है. शायरी आप सीख नहीं सकते हैं. शायरी एक इंसान का इनबॉर्न टैलेंट होता है. मैंने आपको बताया विलियम शेक्सपियर जिसने बैचलर्स का भी इम्तहान पास नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद वो अंग्रेज़ी का सबसे बड़ा शायर है. क्यों? चूँकि वो बाय बर्थ उसका टैलेंट था शायरी करना. तो शायर, याद रखना कि इंसान पैदा ही शायर होता है, फितरत के साथ पैदा होता है शायरी के. उसको सीखा नहीं जा सकता. यू कैन नॉट लर्न इट. इस तरह जब ये पैदा हुए थे लेक डिस्ट्रिक्ट में, बहुत खूबसूरत गाँव था इंग्लैंड का, लेक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ ये पैदा हुए थे और वहाँ खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी. इसी वजह से इनको खूबसूरती के बारे में ये चीज़ें लिखा करते थे बहुत सारी. ठीक है, इनकी शायरी की एक स्पेशल बात थी यूजेज ऑफ हाइपरबोल.
हाइपरबोल का बड़ा इस्तेमाल किया करते थे। हाइपरबोल मतलब एक्सेजरेशन ऑफ द फैक्ट्स, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, मतलब झूठ बोलना। तो ये ज़्यादातर ये अपनी शायरी में किया करते थे। जैसे कि आपने उसमें देखा था डैफोडिल्स में 2 बार उन्होंने ऐसा किया कि उसने कहा कि 10,000 saw I at a glance tossing their and spratly dance, 10,000 देखा मैंने एक ही झलक में, तो एक झलक में गिना कैसे? ठीक, एक झलक में 10,000 कैसे गिने? तो यह हाइपरबोल था, बढ़ा चढ़ा के बात इन्होंने बयान कर दी। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से ये इनका यूजेज हाइपरबोल ज़्यादातर होता है। वेंडरिंग पॉइंट है, आवारागर्द शायर हैं, बेमकसद फिरते रहते हैं इधर उधर, हाथ में एक कॉपी होती है, कलम होती है, जहाँ खूबसूरत चीज़ दिखती है उस इसके बारे में लिख देते हैं। डैफोडिल्स में भी तो आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं आवारागर्दी कर रहा था बादलों की तरह। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, फिर मुझे दिखा फूल, नरगिस के फूल, डैफोडिल्स के फ्लावर। यहाँ पर भी ये वेंडरिंग कर रहे हैं, वेंडरिंग करके एक शायरी कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। तो चलते फिरते शायर ही हैं, जहाँ इनको चीज़ अच्छी खूबसूरत मिल जाए तो उसके बारे में शायरी कर देते हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट्स क्या थे इनके? वैसे थे तो क्रिश्चन, ईसाई थे, लेकिन पैंथीज़म की तरफ इनका बड़ा रुझान था। नाउ व्हाट इज़ पैंथीज़म? पैंथीस्ट किसे कहते हैं? जैसे मुख्तलिफ़ तरह के वर्ड्स होते हैं ना, जैसे एक हमारे पास वर्ड होता है थीस्ट। थीस्ट, थीस्ट मतलब खुदा पर ईमान रखने वाला। जो खुदा पर ईमान रखता हो तो उसको लोग बोलते हैं थीस्ट। ठीक है, और एक होता है इसका एंटोनिया में एथीस्ट। एथीस्ट वो जिसका खुदा पर ईमान ना हो, तो वो होता है अथीस्ट। और एक होता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कौन होता है? जो कि एक कन्फ्यूज पर्सन है, शक में मुब्तला है, जो 50-50% है, जो कहता है कि खुदा है भी और बता खुदा नहीं भी है, वो एग्नोस्टिक है, जिसको कन्फ्यूज है, कन्फ्यूजन का शिकार है। तो 3 तरह के लोग मुसलमान जैसे थीस्ट होते हैं। अब अथीस्ट रिलीजन्स भी हैं, एग्नोस्टिक रिलीजन्स भी हमारे पास हैं पूरी दुनिया में। अब थीस्ट अगर है तो थीस्ट भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे कि हमारे पास होता है मोनोथीस्ट, यस, और एक होता है पॉलीथीस्ट। मोनोथीस्ट तौहीद परस्त, मुवाहिद, तौहीद बारह ताला पे यकीन रखने वाला, जो खुदा को एक मानता, वो कहलाता है मोनोथीस्ट। और जो एक से ज़्यादा खुदा पर ईमान रखते हैं वो पॉलीथीस्ट है। जैसे क्रिश्चन या हिंदू ये पॉलीथीस्ट हैं। ठीक है, वो मुशरिकीन भी जिनको हम कहते हैं शिर्क करते हैं, वो खुदा की ज़ात में शिर्क करते हैं, किसी और को भी मिलाते हैं। यहाँ पर एक अलग सी चीज़ मैंने लिखी, पैनथीस्ट। पैनथीस्ट खुदा पे तो ईमान रखता है, बट इसके नज़दीक नेचर इज़ गॉड। ये कहता है फितरत ही खुदा है, नेचर ही खुदा है। या सूरज, वो सूरज, चांद, ज़मीन, आसमान, हवाएं, जो भी कुदरती चीज़ें हैं वो उनको खुदा मान रहा होता है। वो कहते हैं भाई कि यही, इसलिए इनको पोएट ऑफ नेचर भी कहते हैं। वो गॉड मानते थे, बिलीव करते थे इन तमाम नेचुरल ब्यूटी को, नेचुरल सीन्स को। तो जितने रोमांटिक पोएट्स हैं ज़्यादातर वो पैंथीस्ट ही होते हैं, पैंथीज़म की तरफ उनका रुझान होता है। वो नेचर को गॉड कंसिडर करते हैं और नेचर का वो लिविंग में मानते हैं। जैसे खुदा हमेशा जिंदा है, हमेशा से हमेशा रहेगा ना, वो कहते हैं नेचर हमेशा से और हमेशा तक रहेगी। और खूबसूरत चीज़ें नेचर का पार्ट है, इसलिए खूबसूरत चीज़ें हमेशा परमानेंट रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं हो सकती वो। ये इनका कॉन्सेप्ट था, रोमांटिक पोएट्स जितने भी थे उनका खास तौर पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, पोम को। अच्छा, अब लूसी ग्रे के तो शायद समझ में आ गई इंट्रोडक्शन सबको। इतनी बातें याद रखें, एमसीक्यूज़ में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, पेपर में पूछा जाता है, तो बच्चों को याद नहीं होता ये सब, तो पढ़ते नहीं है वो ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये लूसी ग्रे एक बच्ची का नाम है पहले तो, इट इज़ द नेम ऑफ अ चाइल्ड, एक छोटी बच्ची है, 12-14 साल की, उस बच्ची का नाम है लूसी ग्रे। ट्रेजिक स्टोरी है, एक सानेहा है, एक अलमिया है, एक हादसे की कहानी है जिस बच्ची के साथ पेश आई। और ये लूसी ग्रे की जो पोम है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जिस बुक से लिया गया, उस बुक का नाम है लिरिकल बैलेड्स। तो लिरिकल बैलेड्स इज़ द नेम ऑफ द बुक बाय विच लूसी ग्रे इज टेकन, जहाँ से लिया गया है। और लिरिकल बैलेड्स के अंदर ज़्यादातर बैलेड्स हैं, तो ये भी एक बैलेड है। बैलेड मतलब बहुत पुरानी गीत, बहुत पुरानी दास्तान, एबर्ट ऑफ कैंटरबरी पढ़ाए थे ना, वो बैलेड्स होते हैं। और बैलेड को लिखा की सूरत में कि राइम कपलेट की सूरत में। राइम कपलेट में बताया था एलिट्रेशन होती है, तो इसमें एलिट्रेशन पैटर्न क्या है, ए बी ए बी ए बी, मतलब फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से राइम कर रही है, सेकंड फोर्थ से राइम कर रही है। अगर आप चेक करो तो फर्स्ट थर्ड से राइम कर रही है ना, देखो जैसे ग्रे डे और वाइल्ड चाइल्ड, न्यू ग्रू मोर डोर, प्ले ग्रे ग्रीन सीन, नाइट लाइट गो स्नो, समझ रहे हो, डू टू आफ्टरनून मून, हुक टुक बैंड हैंड, ए बी मतलब ए जो है फर्स्ट जो है वो थर्ड से कर रही है, सेकंड जो है फोर्थ से राइम कर रही है। तो राइमिंग पैटर्न इसका जो है वो ये वाला है, राइम कपलेट्स में लिखा गया है। ठीक है, तो लूसी ग्रे की कहानी स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्ची की कहानी है जो रहती थी एक मूरलैंड में, एक दलदली इलाके में अपने अम्मी अब्बू के साथ। उसके साथ एक हादसा पेश आया
उस हादसे की कहानी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. Oft मतलब often, अक्सर। अक्सर मैंने सुना था लूसी ग्रे के बारे में, और जब मैंने जंगल को पार किया मुझे मौका मिला शाम के वक्त देखने का अकेली बच्ची को। सॉलिटरी मतलब अकेली, और ब्रेक ऑफ डे मतलब शाम, कि शाम के वक्त जब दिन ढला तो मुझे मौका मिला एक अकेली बच्ची को देखने का। मतलब ये कि वो किसी जंगल से गुज़र रहे थे, इंग्लैंड के किसी जंगल से वो गुज़र रहे थे। जंगल में उनको लोगों ने एक दास्तान सुनाई एक बच्ची के बारे में, एक तरह की दास्तान, एक आसेब वाली कहानी सुनाई कि एक बच्ची का आसेब है, एक उसका भूत है जो कि इस जंगल में घूमता है। तो वही कहानी हमें बताएंगे। No mate, no comrade, Lucy knew. She dwelt on a white moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. कोई दोस्त नहीं था, कोई साथी नहीं था लूसी का, आप जानते हैं। मेट मतलब दोस्त, कॉमरेड मतलब साथी। कोई दोस्त कोई साथी नहीं था लूसी का, आप जानते हैं। शी dwelt on a white moor, वो रहती थी एक वाइट कुशादा मोर। मोरलैंड किसे कहते हैं? मोर से मुराद होता है दलदली इलाका, जहाँ दलदल बहुत ज़्यादा जिस इलाके, उसको मोरलैंड कहते हैं। पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ अगर आप जाओगे ना, इंग्लैंड स्कॉटलैंड वगैरह की तरफ, तो वहाँ बहुत होते हैं। आपने टीवी में देखा होगा कभी, वो दूर बर्फ़बारी हो रही होती है, बर्फ़ वाले इलाके होते हैं, दरख्त लगे होते हैं काफ़ी सारे, और दूर दूर तक थोड़े थोड़े सी जगह पर वो घर बने हुए होते हैं, हेड झोपड़ी वगैरह, और बर्फ़बारी हो रही होती है। उसको मोरलैंड कहते हैं, दलदली इलाका, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो रहती थी एक कुशादा दलदली इलाके में, और सबसे प्यारी चीज़ थी वो जो पैदा हो सकती थी किसी घर की दहलीज पर। यहाँ पर ग्रो मतलब उगना है, उगने से मुराद यहाँ पैदा होना है, कि वो एक बहुत प्यारी बच्ची थी जो घर में पैदा हुई थी अपनी अम्मी अब्बू के, मतलब उस जगह पर, उस मोरलैंड के अंदर वो पैदा हुई थी। You yet may spy the fawn at play, the hair upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. आप आज भी देख सकते हैं, स्पाई मतलब देखना, दरियाफ्त करना, खोज लगाना। आप आज भी देख सकते हैं फॉन के मतलब तो हिरन का बच्चा। आप आज भी देख सकते हैं कि उसके घर में हिरन का बच्चा जो है वो आते हैं। आप आज भी देख सकते हैं कि उसके घर के बाहर हिरन का बच्चा खेल रहा होता है। द हेयर अपॉन द ग्रीन, आप हेयर किसे कहते हैं? ये होमोफोन्स हैं, HERE, तीन तरह का हेयर है। ये वाला हेयर का मतलब होता है यहाँ, ये वाला हेयर का मतलब बाल, ये वाला जो हेयर होता है इसके मतलब होते हैं जंगली खरगोश, और एक हेयर यह सुनने वाला भी होता है HEAR, हेयर, इसका मतलब सुनना। एक और होता है HEIR, वो हायर, HAIER है वो, ये हेयर, लेकिन इसको एयर पढ़ते हैं, इसके मतलब होता है वारिस, H साइलेंट कर देते हैं। heir to, I am the heir to my फादर्स प्रॉपर्टी, एयर मतलब वारिस। ठीक है, तो ये वाला जो हेयर होता है जंगली खरगोश। खरगोश दो तरह के होते हैं, जंगली होता है और एक देसी होता है। रैबिट और हेयर, रैबिट जो है वो वाइट कलर का होता है, साइज़ में छोटा होता है, रेड आइज़ होती हैं, जबकि हेयर जो होता है साइज़ में बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं, और ब्लैक आइज़ उसकी होती हैं, जंगल में पाए जाते हैं ज़्यादातर, उसको हेयर कहते हैं। तो रैबिट तो घरों में पालते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हेयर बड़े बड़े होते हैं जो जंगलों में होते हैं। तो आप आज भी देख सकते हैं कि हिरन का बच्चा खेल रहा होगा उसके घर के बाहर, और आप देख सकते हैं सब्ज़े के ऊपर, हरियाली के ऊपर बैठा होगा जंगली खरगोश। लेकिन जो प्यारा चेहरा लूसी ग्रे का, आप उसको आप नहीं देख सकते आप, लेकिन वो बच्ची वहाँ पर नहीं है जो बच्ची वहाँ पर भी रहती थी। अब क्यों नहीं है भाई? देखो उसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि लूसी ग्रे अपनी मदर फादर के साथ रहती थी झोपड़ी में मोरलैंड के अंदर, और उसकी मदर जो है वो जाया करती थी मार्केट। अच्छा, मोरलैंड में मार्केट वगैरह नहीं होती आसपास, बहुत दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है मार्केट के लिए, मतलब यू हैव टू ट्रैवल टू, मतलब पहाड़ क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है मार्केट, और वहाँ से सामान लाना पड़ता है। तो ज़्यादातर मदर जाती हैं लाने के लिए, लूसी ग्रे की अम्मी मतलब। तो एक दिन लूसी ग्रे की मदर वो चले गई मार्केट, तो फादर को पता लगा कि अभी तूफ़ान आने वाला है, कि स्टॉर्म आने वाली, कोई तूफ़ान आने वाला है। तो अब ऐसा ना हो कि उसकी मदर तूफ़ान में फंस जाए, तो उसके फादर अपनी बेटी लूसी ग्रे से कहते हैं कि तुम जाकर अपनी मदर को वहाँ से लेकर आ जाओ, मतलब अपनी उस रास्ता दिखाते हुए उनके साथ तुम सपोर्ट करते हुए उनको आ जाओ। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि ये जो अब नेक्स्ट जो स्टेंजा है ना, वो एक्चुअली इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन फादर एंड लूसी ग्रे। तो अब्बू कहता है लूसी ग्रे से, अपनी बेटी से, टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो एंड टेक अ लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो।
आज की रात एक तूफ़ानी रात होगी, तुम्हें लाजमी शहर जाना होगा, और मेरी बच्ची तुम एक लालटेन ले लेना ताकि तुम अपनी माँ को रास्ता दिखा सको जब तुम गुजरो बर्फ़ से। मतलब ये फादर कह रहे हैं लूसी ग्रे। अभी यहाँ उस सीन पे मैं आऊँगा, अभी सीन पे नहीं आखिरी में सीन है। दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, टिस स्कार्सली आफ्टरनून, द मिनिस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 2 एंड यॉन्डर इज़ द मून। लूसी ग्रे कहती है अब्बू ये मैं खुशी से करूँगी, ये काम मैं खुशी से करूँगी। टिस मतलब इट इज़, स्कार्सली मुश्किल से, अभी मुश्किल से दोपहर का वक्त हो रहा है। द मिनिस्टर क्लॉक मतलब गिरजाघर की घड़ी, चर्च की घड़ी। गिरजाघर की घड़ी में अभी सिर्फ 2 ही बजा है, स्ट्रक मतलब बजाया, 2 ही बजाया है अभी। एंड यॉन्डर इज़ द मून, और सामने चांद है। यॉन्डर मतलब सामने, यॉन्डर, मून मतलब चांद, और सामने चांद है। अब यहाँ पर अब दो बातें करनी है। पहली बात तो जब सामने चांद दिख रहा है ऐसे मतलब तो ये कि अभी मतला साफ़ है, बारिश का मौसम नहीं है अभी। मतलब वो कहती है कि मैं जाले जाऊँगी आराम से, बारिश आने में तो तूफ़ान आने में बहुत टाइम है, अभी दवादार भी चूँकि नहीं लगे हुए हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि 2 बजे चांद कैसे दिखेगा? वो कहते हैं कि गिरजाघर गली में अभी 2 बज रहे हैं, दिन के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे चांद। तो यहाँ लिखा हुआ है ना किट इज स्कार्सली आफ्टरनून, अभी मुश्किल से दोपहर हो रहा है, 2 बजे का टाइम है, और चांद भी दिख रहा है। चांद दिखता है समटाइम्स, पर 6 बजे 7 बजे दिखता है, 2 बजे तो चांद कभी भी नहीं दिखेगा। बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान, हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान में क्या होता है कि कंट्री जो है ना, दुनिया के ग्लोब को हम इस तरह से ब्रेक कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर बीच वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर। नीचे क्या होती है? कौन सा ट्रॉपिक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद ये आ गया आपके पास नॉर्थ पोल, ये आ गया आपके पास साउथ पोल। पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री के अंदर ये सब, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। पूरे अर्थ को इस तरह से जियोग्राफिकल लोकेशंस में डिवाइड करते हैं हम। अब हम चूँकि इक्वेटर में रहते हैं, जो इक्वेटर में जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए दिन और रात बराबर होते हैं। इक्वेटर लाइन के अंदर जो लोग रहते हैं ना, जितने दिन होती है उतना बड़ा रात होता है उनका, ठीक है। लेकिन जब इससे आगे पीछे हटते हैं तो दिन रात का फ़र्क आना शुरू हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई रातें छोटी होती हैं, दिन लंबे होते हैं ज़्यादातर, चूँकि गर्मी का मौसम देर तक रहता है। बिल्कुल सेम अगर नॉर्थ पोल रीजन की तरफ आप जाएंगे ना, चूँकि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड वगैरह बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरफ है, ठंडे ममालिक हैं सारे। जी स्कॉटलैंड की बात हो रही है ना यहाँ पर, या इंग्लैंड की बात हो रही है, तो बड़े ठंडे ममालिक हैं। दे आर सो मच मतलब कोल्ड कंट्रीज़। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर सूरज सिर्फ कुछ घंटों के लिए निकलता है। रशिया वगैरह पे जाओगे, साइबेरियन साइड पे, तो 3 घंटे 4 घंटे के लिए सूरज निकलता है बस। ये ज़्यादातर स्कॉटलैंड के ऊपर के एरियाज़ में 4 घंटे 5 घंटे सूरज निकलता है। 9 बजे सूरज निकलता है, 3 बजे डूब जाता है। सुबह के 9 बजे सूरज निकलेगा और 3 बजे डूब के 4 बजे तक अंधेरा। क्योंकि दुनिया में हर कंट्री पाकिस्तान जैसी नहीं है, नॉर्थ पोल की कंट्री। और अगर आप तुम टॉप पे जाओगे तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ 6-6 महीने तक दिन, 6-6 महीने तक रात रहती है। 6 महीने दिन है तो दिन है, 6 महीने रात है तो रात है। और वाकई में ऐसा, आप नेट पर सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगे ऐसी जगह, दुनिया में है। तो यहाँ पर चूँकि इंग्लैंड की बात हो रही है ना, या स्कॉटलैंड की बात हो रही है, तो वहाँ पर 2 बजे भी आपको चांद दिख जाता है, समझ रहे हो। पाकिस्तान में नहीं दिखेगा कभी भी, यहाँ मकसद ये है। तो हमारे पाकिस्तानी बच्चे इस सेंटेंस को पढ़ के टेंशन में आ जाता है कि सामने चांद कैसे दिखाई देगा। तो लूसी ग्रे कहती है कि बाबू ये मैं खुशी से करूँगी, अभी मुश्किल से दोपहर है, गिरजाघर गली में 2 बज रहा है और सामने चांद है, मतलब पतला साफ़ है, क्लियर है, मैं जाकर ओझ होके आ जाऊँगी। And this the feather raised his hook and snapped a faggot band. He plied his work and Lucy took the lantern in her hand. ये कहकर बाप ने अपना हुक उठाया। हुक से मुराद उसके पास एक हुक टाइप का था, वो काटने के लिए होता है नॉर्मली, इस तरह का होता है ना वो, लाइक या सिकल जाए जिसको हम लोग कहते हैं, यस ठीक है, सिकल। तो ये हुक उसके पास था, उसने वो उठाया एंड स्नैप्ड अ फैगट बैंड, और उसने एक फैगट बैंड को काटा। फैगट बैंड मतलब फैगट बैंड कहते हैं भाई कि गंदम की जो एक बैंड होती है, गठरी होती है, उसको फैगट बैंड कहते हैं। जब गंदम वगैरह काट दिया जाता है ना, तो कटाई करने के बाद उसको बांध देते हैं रस्सी से बांध के उसको जो है वो गठरी बना कर रखते रहते हैं। तो जब उसके गंदम मतलब उसमें से उसके उस पूरे ग्रेन्स को अलग करना होता है उसके फसल में से, क्रॉप में से, तो फिर हम क्या करते हैं, वो काटते हैं। फिर हम पहले उसके रस्सी काटते हैं, फिर अलग अलग दाने कर रहे होते हैं गंदम के। तो उसके बाप ने क्या किया, एक काटा, स्नैप मतलब काटा एक फैगट बैंड। ही प्लाइड हिज वर्क एंड लूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड।
फ्लाइट में था मसरूफ़ हो गया, वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया और लूसी ने अपने हाथ में एक लालटेन ले लिया, लालटेन की मदद से, ताकि वो रास्ता दिखाकर अपनी मदर को आए। नॉट ब्लीदर इज़ द माउंटेन ड्यू विथ मैनी एवेंट ऑन स्ट्रोक, हर फीट डिस्पर्स द पॉटरी स्नो दैट राइजेस अप लाइक स्मोक। खुश नहीं था पहाड़ी हिरन, माउंटेन ड्यू पहाड़ी हिरन, पहाड़ी हिरन खुश नहीं था। ब्लीदर मतलब खुश होना। पहाड़ी हिरन खुश नहीं था, इधर उधर भाग रहा था। चूँकि जानवरों को अगर कोई कैलेमिटी आने वाले होते हैं, कोई कैटेस्ट्रोफ, कोई तबाही, कोई आफत आने वाली हो तो पहले पता लग जाता है। ठीक है, जैसे जब तूफ़ान आने वाला होता है तो परिंदे वगैरह हवा में उड़ने लगते हैं, आसमान पे काफ़ी आ जाते हैं। इस तरह से नॉर्मली जब जलज़ला आने वाला होता है, अर्थक्वेक, तो फिर क्या होता है कि बिल्ली वगैरह जो है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका मतलब जलज़ला आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है। क्योंकि वो इंफ्रासोनिक चीज़ों को जल्दी वो जज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सुन लेते हैं। विथ मैनी एवेंट ऑन स्ट्रोक, बहुत सारी शदीद चोटें लगाई उसने ज़मीन पे। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, उसके पाँव ने पाउडर वाले स्नो को इधर उधर बकेरा, दैट राइजेस अप लाइक स्मोक, जो ऊपर उड़ रही थी धुएँ की तरह। मतलब वो जैसे बच्चे चलते हैं ना, ज़मीन पे लात मार मार के चलते हैं, छोटे बच्चे ज़मीन में ना उछल उछल के चलते हैं, जंपिंग करके, तो ज़मीन पे लात मारते हैं। जो ज़मीन पे लात मारते हुए जब वो चल रही थी, तो नीचे तो बर्फ़ बिछा हुआ है ना, तो वो बर्फ़ हवा की तरफ उड़ रहा था, बर्फ़ उड़ रहा था, तो वो ऐसा लग रहा था कि भाई कोई पाउडरी स्नो है। ठीक है, स्मोक की तरह, धुएँ की तरफ उड़ रहा था। जैसे नॉर्मली अगर कभी आप नॉर्मली ठंडे जगह पर जाए, रशिया वगैरह, साइबेरिया वगैरह साइड पे, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है बहुत सारी ऐसी जगह, वहाँ जब कार चलाते हैं ना, तो कार चलाते जैसे धूल उड़ती है ना ज़मीन में, तो बर्फ़ उड़ रहा होता है, उसके अंदर बर्फ़ उड़ रहे होते हैं। वो बड़े ठंडे इलाके लेकिन होते हैं वहाँ पर। ठीक है, रशिया साइड पे या फिर और कहीं। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, शी वेंडेड अप एंड डाउन, एंड मैनी हेल्ड इट लूसी क्राइम बट नेवर रीच द टाउन। तूफ़ान अपने वक्त से पहले ही आ गया, तूफ़ान अपने वक्त से पहले ही आ गया। वो बेमकसद फिरती रही ऊपर और नीचे, और बहुत सारे पहाड़ों को लूसी गिरे ने क्लाइम किया, बट नेवर रीच द टाउन, लेकिन वो कभी टाउन नहीं पहुंच पाई। मतलब तूफ़ान वक्त से पहले ही आ गया, जो जाना तो उससे पहले मौसम ख़राब हो गया, तो लूसी अंधेरा छा गया, तूफ़ान आना शुरू हो गया, वो भागते रहे इधर उधर, लेकिन वो अपने शहर टाउन अपनी मदर को लेने के लिए पहुंच नहीं पाई। जब नहीं पहुंच पाई तो जब तूफ़ान था, तो उसकी मदर खुद ही आ गई, मतलब किसी तरह से। तूफ़ान तो पहले आ गया था, उसकी मदर निकली थी नहीं मार्केट से, तो वो रुक गई मार्केट में। जब तूफ़ान थमा तो घर आ गई वो। जब घर आई तो फादर ने बताया, मैंने तो लूसी गिरो को भेजा था ढूंढने के लिए तुम्हें, तो अब परेशान हो गए ये दोनों अम्मी अब्बू। तो द wretched parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. बदनसीब वालदैन सारी रात शोर चिल्लाते रहे लूसी गिरे का नाम, फॉर एंड वाइड, दूर दराज इलाकों में, दूर दराज इलाकों तक गए, वो चिल्लाते हैं कि लूसी गिरे का नाम, लेकिन वहाँ था ना तो कि लूसी गिरे की आवाज़ आई कोई, नहीं उसका नज़ारा दिखाई दिया। टू सर्व देम फॉर अ गाइड, कि उनकी रहनुमाई हो जाती, कि वो पहुँच जाते अपनी बेटी के पास, लेकिन ना आवाज़ आई, ना कोई नज़ारा दिखाई दिया। एट डे ब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूड दैट ओवरलुक द मोर, एंड देन दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड अ फॉरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर। शाम हुई, शाम होना शुरू हो गई, तो फिर वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, जहाँ से दूर से नज़ारा किया जा सकता था पूरे दलदली इलाके का। और वहाँ से उन्होंने देखा द ब्रिज ऑफ वुड, लकड़ी का एक पुल, अ फॉरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, जो उनके दरवाजे से 1 फरलांग के फासले पर था। तो 1 फरलांग आपका होता है लगभग जो है वो 200 मीटर, 200 मीटर तक का जो है वो आपका 1 फरलॉन्ग होता है। ठीक है, FPS सिस्टम के अंदर यूनिट है, ये यूनिट ऑफ लेंथ है, फुट पर सेकंड में, कि इंच होता है, फिर फुट होता है, फिर यार्ड होता है जिसको गज़ बोलते हैं, उसके बाद फिर फरलॉन्ग होता है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये आपके पास लूसी गिरे का हट है। तो लूसी गिरे यहाँ रहती है, लूसीज होम, छोटे में बनाते थे ना एक साथ यूँ करके। मैं उसको, मेरा ट्रिक ये था कि अपना नाम एन से बनाता था, मैं, मेरा नाम एन से नसीम है, यूँ एन बनाता था, फिर यूँ करके बनाया। ये मेरा ट्रिक था। ठीक है, अब यहाँ से अब जाओगे फासला तो 200 मीटर, 1 फरलॉन्ग लिख देता हूँ। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम के अंदर फरलॉन्ग कहते हैं। 1 फरलॉन्ग के फासले पर एक पूरा ब्रिज है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिज ऑफ वुड। ठीक है, तो दैट इज़ ब्रिज ऑफ वुड, और इसके नीचे से दरिया बह रहा है ना। ठीक है, इसके नीचे से रिवर है, और रिवर में पानी मौजूद है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कि दूर फार अवे, तो वहाँ से काफ़ी दूर एक पहाड़ है,
और उस पहाड़ के ऊपर जब शाम का टाइम हो रहा है, ठीक है, सूरज डूब चुका है, तो पहाड़ के ऊपर जो है वो अम्मी अब्बू खड़े हैं। तो पहाड़ी से वो देखते हैं ब्रिज ऑफ वुड को, लकड़ी के पुल को जो वहाँ से दिखाई देता है। तो शाम के वक्त जब शाम होती है, सूरज डूब रहा होता है, तो वो एक पहाड़ी पर खड़े हो जाते हैं और उस पहाड़ी से वो देखते हैं मूर को, दलदली इलाके को, और वहाँ से वो उनको दिखाई देता है अपने ब्रिज ऑफ वुड जो उनके घर के दरवाजे से 1 फुलदांग के फासले पर होता है। मतलब वो ये कि अब उनको लगता है कि अब घर चले जाना चाहिए, कि अब इतना ढूंढ लिया है, तो घर जब देखते हैं तो दिल करता है भाई घर चले जाएँ, बहुत ढूंढ लिया, अब तो शाम हो गई है, अब तो रात के वक्त तो मिलेगी भी नहीं बेटी उनकी। दे वेप्ट एंड टर्निंग होमवर्ड क्राइड इन हेवन वी ऑल शैल मीट। वो रोए, मतलब इनके जो है आंसू भी निकले, वो रोए और घर की जानिब मुड़े और चिल्लाए, इन हेवन वी ऑल शैल मीट, जन्नत में हम सब दोबारा मिलेंगे। अच्छा, क्रिश्चियन है ना ये सब, तो क्रिश्चियंस को कंफर्म होता है कि हम जन्नत में ही जाएंगे। हाँ, कि वो कुछ भी करें, कितने भी गुनाह कर दें, उनको जन्नत में ही जाना है। क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट यही है। हाँ, सारे गुनाह अपने सर पर ले लिया। तो उन्होंने कहा कि इन हेवन वी ऑल शैल मीट, जन्नत में हम सब दोबारा मिलेंगे। व्हेन इन द स्नो द मदर इज स्पाइड, उसी वक्त माँ ने लूसी गिरे की ज़मीन पर देखा, सब बर्फ़ पर देखा, द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, लूसी के कदमों के निशान जो जमे हुए होते हैं। जब कोई बंदा बर्फ़ पे चलता है ना, तो बर्फ़ पे निशान जम जाते हैं, लंबे अरसे तक जमे रहते हैं, ठीक है। तो लूसी के कदमों के निशान उसने देखे बर्फ़ पर। देन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टीप हिल सेज, उसके बाद नीचे उतरते हैं वो स्टीप हिल सेज में। स्टीप हिल किसे कहते हैं कि स्टीप हिल वो पहाड़ी होता है जो इस तरह से जिसके ढलान हो, ठीक है। ये जो पूरी हिल है ये आएगा स्टीप हिल, ढलवानी पहाड़, ढलवानी पहाड़ को हम कहते हैं स्टीप हिल। और एज मतलब ये उसका किनारा, ढलवानी पहाड़ का किनारा, दैट इज स्टीप हिल्स एज। तो कुछ पहाड़ी होते हैं जो मतलब स्टीप हिल होते हैं और कुछ बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो ये जो एल ब्लॉक पे जो रोड पे पहाड़ी है, नहीं केटो नहीं, ये सामने जो बिल्कुल है पहाड़ रोड के बराबर में एक पहाड़ी दिखती है ना छोटी सी, वो है स्टीप हिल, बिल्कुल स्ट्रेट। वहाँ बाइक चला दो आप उसके ऊपर, बाइक लोग लेकर चले आते हैं पहाड़ के ऊपर, बिल्कुल वो इस तरह से यूँ है। जबकि अगर आप ये केटो देखो तो बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। ये आप वो पहाड़गंज को देख लो, गंज पहाड़ जो नॉर्थ इलाहाबाद कस्बा वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो वो स्टीप हिल नहीं है। तो ये स्टीप हिल था जिस पर आराम से चढ़ा जा सकता था। तो उसके बाद नीचे उतरा तो नीचे पर स्टीप हिल पे भी उन्हें लूसी के कदमों के निशान दिखाई दिए किनारे पर। दे ट्रैक द फुट मार्क्स स्मॉल, उन्होंने छोटे छोटे कदमों के निशानात को पीछा किया। एंड थ्रो द ब्रोकन हॉथॉर्न हेज, और वे पूरे गुजरे टूटे हुए हॉथॉर्न हेज से। हॉथॉर्न हेज किसे कहते हैं? हॉथॉर्न कहते हैं फूलों का नाम है, हेज मतलब उसकी बाड़। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं कि भाई रोड पर आ जाते हैं खिलते खिलते। तो यहाँ पर आ गया हॉथॉर्न हेज। हॉथॉर्न फूलों को कहते हैं और हेज मतलब उसका रुकावट, उसके ऑब्स्टिकल, उसका बाड़ बन गया था। ये टूटा हुआ था, जैसे को भागते हुए यहाँ से गुजरा है। तो वहाँ से वो गुजरे टूटे हुए फूलों के बाड़ से। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, फिर वहाँ से गुजरते हुए गए एक लंबा जो है वो स्टोन का वॉल था, पत्थर की दीवार थी। तो पत्थर की दीवार के सामने से गुजरे कदमों के निशानात का पीछा करते करते। एंड देन एन ओपन फील्ड अक्रॉस, उसके बाद जो है वो एक खुला मैदान था। उस खुले मैदान को उन्होंने, दैट इज़ ओपन फील्ड, तो खुले मैदान को उन्होंने क्रॉस किया। तो कदम अभी भी निशान चल रहे थे। द मार्क्स फॉर स्टिल द सेम, निशाना तब भी वैसे ही थे। दे ट्रैक दैम ऑन नॉर एवर लॉस्ट, उन्होंने हर निशान का पीछा किया, किसी को खोया नहीं। एंड द ब्रिज देखे हम, यहाँ तक कि वो ब्रिज तक आ गए। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक, उन्होंने बर्फ़ानी किनारे से शुरुआत की। ये जो है ना, जहाँ पर बर्फ़ जब पड़ती है ना तो किनारे पे बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है, इसको कह रहे हैं स्नोई बैंक, बर्फ़ानी किनारा। तो बर्फ़ानी किनारे से उन्होंने शुरू किया। 2 फुट मार्क्स 1 बाय 1, उन कदमों के निशानात को एक एक करके। तो सारे कदमों के निशानात आ रहे थे इस तरह से। इनटू द मिडिल ऑफ द प्लैंक, प्लैंक मतलब तख्ता, यहाँ तक कि तख्ते के बीच तक पहुँच गए। एंड फर्दर देयर वॉज नन, और बीच तक तख्ते के जाने के बाद आगे दूसरा और कोई निशान नहीं था। देयर वॉज नो, मतलब देयर वॉज नो साइन ऑफ फुट मार्क्स ऑफ लूसी गिरे। तो ये जैसे कि जब आप देखते हैं ना अपनी बुक के अंदर जो आपको जो है यहाँ पर ये जो आपके पास ये जो दिखाई दे रही है, जो तस्वीर है, पिक्चर है, तो दैट पिक्चर इज़ ऑफ लूसी गिरे। ये इसी सीन को बता रहे हैं। ये बच्चे लूसी गिरे, इसके हाथ में एक लालटेन है और ये जा रही है, एक पुल से गुजर रही है, और बहुत दूर किसी किताब में आपको उसका घर भी दिख रहा होगा। घर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, घर दिखाओ।
नहीं, इसमें घर नहीं दिख रहा ना, पहाड़ दिख रहे हैं। एक और तरह की बुक हो तो उसमें घर भी दिख रहा होता है उसका, कि एक फुटलॉन्ग के फासले पर होता है। और अगर इसी में आगे जाकर देखोगे ना तो बुक में आगे दिख रहा होगा कि आगे एक पटरी खाली है, पटरा खाली है, मिडल ऑफ द प्लैंक में होल बना हुआ है, 2 पटरा खाली है। तो यहीं से जाते जाते वो बेचारी बच्ची लूसी ग्रे जो थी वो जो है उससे ड्रोन हो गई थी, गिर गई थी नीचे, ड्रॉप हो गई थी। ठीक है, लालटेन ताकि दिखाई दे रहा, रोशनी हो थोड़ी सी, तो वो चाहे नहीं हो, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चल रही थी। तो ये जो आपकी टाइटल पेज बनाया गया वो लूसी ग्रे को ही बनाया गया इसलिए, तो कि बहुत फेमस पोम है ये। आगे नेक्स्ट पेज, येट सम मेंटेन दैट टू दिस डे, अब तक कुछ लोग इस दिन को याद रखे हैं, उस दिन को बरकरार रखे हैं, लोग इस कहानी को जानते हैं और कहते हैं शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, वो एक जिंदा बच्ची है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे, कि आप आज भी देख सकते हैं लूसी ग्रे को अपॉन द लोन सम वाइल्ड, अकेले जंगल में आप आज भी लूसी ग्रे को देख सकते हैं। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलॉन्ग, के खुरदरे और हमवार रास्तों पे दबे पाँव चलती है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, और एक अकेला नगमा गाती है। दैट विसल्स इन द वाइंड, और उसकी आवाज़ गूंजती है हवाओं में। तो देखा जाए तो यहाँ पर तो हॉरर स्टोरी टाइप की आपको लग रही होगी कि भाई बच्ची मर गई, आवाज़ जिंदा कैसे हो गई। तो यहाँ पर चूँकि विलियम वर्ड्सवर्थ एक पैंथीस्ट हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि चूँकि लूसी ग्रे खूबसूरत बच्ची थी, तो खूबसूरत बच्ची है तो उसकी खूबसूरती ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मरने के बाद वो नेचर का पार्ट बन गई है, नेचर का हिस्सा बन के। हवाएं चल रही है तो उसमें भी लूसी ग्रे शामिल है। ठीक है, इस तरह से हर खूबसूरत चीज़ के अंदर वो शामिल है। तो दैट इज़ अ परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटी एंड लव, जो कि रोमांटिक पोएट शाया कर रहे हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम देयर?